Last time I told you the formula for the derivatives, so that I am writing over there. For the derivatives, if y is equal to constant, then the derivative dy upon dx will be equal to 0. The derivative of a constant always be 0. If y is equal to x raised to power n, the derivative dy upon dx will be equal to n into x raised to power n minus 1. If y is equal to x raised to power n, the derivative will be equal to n. The power will come over there, the power will multiply with the function n into x raised to power n minus 1. We will subtract one power from the given power. जो भी पावर होगी उसमें से एक कम कर देंगे और जो गिवन पावर थी उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ये इसका डेरिवेटिव होगा. लेकिन अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट भी लगा हुआ है a x रेज़ टू पावर n, तो अगर कांस्टेंट अलहदा है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा. लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ x के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा. ये एज इट इज लिखा जाएगा, a एज इट इज लिखा जाएगा और x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये बेसिक रूल्स थे इसके. मोहम्मद मुनीब, तो ये इसके बेसिक फार्मूले हैं. हमजा अली,
So these are the basic rules. The derivative of a constant will be 0. The derivative of x raised to power n will be n x raised to power n minus 1. The derivative of a x raised to power n, when some constant is associated with some function of x, then constant will not be 0. Constant will remain as it is, into the derivative of x raised to power n, that is n x raised to power n minus 1. So these are the basic rules of the differentiation. Salah Shakir, Shahmir Ahmed. Anyone may convey the message to Salah Shakil. He must write the ID. Mahmoud. Sayyid Muhammad Hassan. So these are the basic rules for the differentiation, and I have already told you in the previous class the differentiation. Differentiation is the process of derivative. To find the derivative, so derivative is the rate of change. Differentiation to find the rate of change of a function. So when the function is constant, so there will be no change. So therefore the derivative of a constant always be 0. When the function is x raised to power n, the derivative will be n into x raised to power n minus 1. The power is multiplied with the function, and we will subtract one power from the given power. If the function is associated with some constant, then the constant will remain as it is. No need to write 0 for the derivative of the constant. The constant will remain as it is. It will be multiplied with the derivative of the function. So these are the basic rules. Now, if the two functions are being added or subtracted, if y is equal to u plus minus v, u and v are both the functions of x. U and v both are the functions of x. Then the derivative dy upon dx will be equal to the derivative of u and plus minus derivative of v. If the two functions being added, their derivatives will be added. If the two functions are being subtracted, the derivative will be subtracted. So this is the sum and difference formula, and then the product formula, product rule. If y is equal to u into v, both are the derivatives, both are the functions of x, u and v. Then dy upon dx, it will also be written y dash. Dy upon dx will also be written y dash. Y dash means the derivative of y with respect to x. Dy upon dx. Dy upon dx will be written y dash is equal to the derivative of any one of the two functions into v plus the derivative of the second function into the first function. तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी प्रोडक्ट, ये कहलाता है प्रोडक्ट फार्मूला.
अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे बीच में, और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे और पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहले एक का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, पहले से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट फार्मूला। एक है कोशेंट फार्मूला। नाउ सलाह शकील, अहमद खान, हमजा शकील। ये भाई आप लोग लेट क्यों आते हैं? 9 बज चुके हैं, अब आप लोग ज्वाइन करें। 9:45 पे सिर्फ एक बच्ची आई थी, मदिया, और 9:50 51 तक हम ऐसे ही बैठे रहे। 10 मिनट 15 11 10 12 मिनट हमने वैसे ही जाय कर दिए। 9:40 पे हमने स्टार्ट कर दिया था और 10-12 मिनट हम वैसे ही। तो ये सबके साथ यही मसला था। ये शामिर कह रहे हैं एलएमएस ने, और ये 9:30 ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, सबके साथ एक एकदम मसले हो गए, सबके साथ एकदम मसले हो गए, कोई भी टाइम पे नहीं आया। तो हमारा कैसे एलएमएस खुल जाता है? हमारा कैसे एलएमएस खुल जाता है भाई टाइम पे? सबके साथ मसले हो गए एकदम। और आप एलएमएस पे जाएं और ये प्राइवेटली इसको ज्वाइन नहीं किया करें भाई। यू मस्ट ज्वाइन थ्रू द एलएमएस। ये प्राइवेटली, अब मैं प्राइवेटली बिल्कुल बंद कर दूंगा, उसको रिमूव कर दिया करूंगा जो प्राइवेटली ज्वाइन करते हैं। दे मस्ट ज्वाइन थ्रू एलएमएस। प्राइवेटली ज्वाइन मत किया करें। कोई तरीका तो नहीं है प्राइवेटली ज्वाइन करने का? क्यों भाई? एलएमएस किस लिए बनाएगा? हम एलएमएस के थ्रू क्यों करते हैं? हम भी प्राइवेट जो है इसको मीटिंग को प्लान कर सकते हैं अपनी आईडी से। हम क्यों नहीं इसको लॉग इन होते? हम एलएमएस के थ्रू क्यों होते भाई? इसलिए कि जरूरी है, उस पर रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस पर एलएमएस पे रिकॉर्ड होना चाहिए इसका कि किस वक्त क्लास शुरू हुई है, किस वक्त खत्म हुई है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बच्ची जिसने ज्वाइन किया उसने भी 8:45 पे ज्वाइन किया, उसने भी 5 मिनट से, और उसके बाद 6-7 मिनट हमने मजीद वेट किया, कोई भी नहीं आया, फिर हमने स्टार्ट किया। तो ये प्रोडक्ट फार्मूला था। अब है हमारे पास क्वोशंट फार्मूला। यानी अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, y इज इक्वल टू u अपॉन v, तो इसका डेरिवेटिव y का क्या हो जाएगा? y डैश का मतलब dy अपॉन dx, y डैश का मतलब dy अपॉन dx, u डैश का मतलब du अपॉन dx, v डैश का मतलब dv अपॉन dx। अगर ये क्वोशंट फार्मूला कहलाता है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ये फंक्शन की बात हो रही है, ये कांस्टेंट्स की बात नहीं हो रही। ये भी फंक्शंस की बात हो रही है, प्रोडक्ट में भी ये कांस्टेंट्स की बात नहीं हो रही। तो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर u डैश इंटू v माइनस डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। तो ये क्वोशंट फार्मूला है, u अपॉन v, u इज द न्यूमरेटर, v इज द डिनोमिनेटर।
सो इसका अगर डेरिवेटिव लें अब u अपॉन v का, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर इनटू द डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इनटू द first we'll take the derivative of the numerator into the denominator minus numerator into the derivative of the denominator upon the square of the denominator. तो ये हमारे पास ये चंद फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, बेसिक फार्मूले हैं ये इसके डिफरेंशिएशन के, तो ये हम यूज करेंगे एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. So we are doing exercise 3.2, page 169. Exercise 3.2, पेज 169. ये हम थॉमस कैलकुलस कर रहे हैं भाई. इससे पहले भी लिमिट्स हमने सब थॉमस कैलकुलस से किए हैं. डेरिवेटिव कैलकुलेशंस in exercise 1 to 12, find the first and second derivative. Find the first and the second derivative. First question है y is equal to minus x square plus 3. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx लिख दें या y डैश लिख दें, एक ही चीज है. dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव, या y डैश भी हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा, एक्स रेस टू पावर n वाला फार्मूला लगेगा, n नीचे आ जाएगा, n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1. तो ये 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स रेस टू पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, पावर 2 है, इसमें से माइनस 1 करेंगे तो 1 पावर आ जाएगी. फिर प्लस का साइन है, डेरिवेटिव ऑफ 3 ये कांस्टेंट है, द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट विल बी 0. जब डेरिवेटिव कांस्टेंट अकेला हो, किसी फंक्शन के साथ ना हो, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, 0. ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यहां मैं लिख दूं, एक पावर कम करके पावर लिख देंगे, ये पावर नीचे ले आएंगे और एक पावर कम करके यहाँ पावर लिख देंगे, फिर प्लस का साइन है और ये 3 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स रेस टू पावर 1, तो एक्स आ जाएगा और प्लस 0. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है dy अपॉन dx या y डैश. अब उसने कहा सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर. ऊपर जो है d के ऊपर 2 डालेंगे और नीचे x के ऊपर 2 डालेंगे, याद रखिए, ऊपर d के ऊपर 2 डालेंगे और नीचे x के ऊपर 2 डालेंगे. ये y के ऊपर 2 नहीं डालेंगे, ऊपर जो है d के ऊपर 2 डलेगा और नीचे x के ऊपर 2 डलेगा. और इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2x. तो ये ax रेज़ टू पावर n वाला फार्मूला लगेगा, कांस्टेंट भी है इसमें और फंक्शन भी है, तो कांस्टेंट माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x. x का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के डेरिवेटिव से, x का डेरिवेटिव पावर 1 है, यहाँ ये 1 पावर नीचे आ जाएगी और x रेज़ टू पावर
इस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, एक पावर कम कर देते, n-1। तो ये हो गया हमारे पास -2 into 1 will be -2 और x raised to power 0, 1 - 1 0 और x raised to power 0 1 होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 into 1, तो -2 आंसर हो गया। तो आप देखें इसका -2 कांस्टेंट एज इट इज आया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। x का डेरिवेटिव क्या आया है? 1 और -2 into 1। तो अगर x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, याद रखिए। वो 1 कैसे होगा? ये पावर 1 आ जाएगी, ये पावर 1 थी वो नीचे आ जाएगी और x रेज़ टू पावर 1 पावर थी, उसमें से -1 कर देंगे तो x रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा और x रेज़ टू पावर 0 का मतलब होता है 1। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, याद रखिए, x का डेरिवेटिव 1 होगा। मोहम्मद मुनीब 10494 और अरीब अहमद 11। अरीब तो so this is the answer। ये फर्स्ट डेरिवेटिव -2x, सेकंड डेरिवेटिव -2। सेकंड डेरिवेटिव को d2y अपॉन dx स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं, यानी सेकंड डेरिवेटिव। और इसको यूं भी लिखते हैं, ब्रैकेट में 2 डाल देंगे, पावर 2 लेकिन ब्रैकेट में। d2y सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर यूं लिखते हैं या फिर यूं भी लिख देते हैं या फिर यूं भी लिख देते हैं। y रेज़ टू पावर 2 बट विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट डाल के लिखेंगे वरना y स्क्वायर कहलाएगा और ब्रैकेट डली होगी, इसका मतलब दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। अगर पावर पे ब्रैकेट डली होगी दैट मीन दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, नॉट द पावर 2। दिस इज नॉट द y स्क्वायर, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। So this is the way we will solve this, the first and the second derivative। फर्स्ट डेरिवेटिव उसका ले लिया, माइनस का साइन एज इट इज रहा, ये पावर नीचे आ गई और एक्स स्क्वायर में से पावर 1 कम करके लिख दिया, 2 में से पावर 1 कम करके लिख दिया तो पावर 1 आ गई और फिर प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो -2x सिर्फ आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मींस द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव। तो -2 एज इट इज आ गया, वही रूल अप्लाई कर देंगे जो डेरिवेटिव में पहले हमने किया था, ये वाला कांस्टेंट है तो -2 लिख दिया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, -2 into 1 will be -2। So this is the way how to find the derivative and how to write the second, third, fourth derivative, whatever it is। तो d के ऊपर न्यूमरेटर ऊपर जो है d के ऊपर पावर डालेंगे, अगर फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव है तो 2 डाल देंगे, थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 डाल देंगे, फोर्थ डेरिवेटिव है तो 4 डाल देंगे और नीचे x के ऊपर पावर डाल देंगे। सेकंड डेरिवेटिव है तो 2, थर्ड डेरिवेटिव 3, फोर्थ डेरिवेटिव तो 4। या फिर यूं लिख देंगे, सेकंड डेरिवेटिव है 2 डैश डाल देंगे, थर्ड डेरिवेटिव 3 डैश डाल देंगे, फोर्थ डेरिवेटिव 4 डैश डाल देंगे। या फिर यूं लिख देंगे y रेज़ टू पावर 2 इन विद इन द ब्रैकेट, सेकंड डेरिवेटिव है तो थर्ड डेरिवेटिव है तो y रेज़ टू पावर 3 इन द ब्रैकेट।
y raised to power 4 within the bracket. That means the fourth derivative, and so on. So that was question number 1. Question number 2. Y is equal to x square plus x plus 8. फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश 2 नीचे आ जाएगा और x की पावर 1 कम करके लिख देंगे, 2 पावर में से कम करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, दैट मीन्स x प्लस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। जैसा कि अभी हमने किया, कैसे होगा, ये 1 पावर जो है इसकी x मीन्स x रेज़ टू पावर 1, ये 1 पावर नीचे आ जाएगी और x की पावर 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगी x रेज़ टू पावर। तो 1 इंटू x रेज़ टू पावर 0 विल बी 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x प्लस 1 and the second derivative y double dash 2 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2, द सेकंड डेरिवेटिव इज 2। So this is the way how to solve this question. Now we will do question number 4. W is equal to 3z raised to power 7. Let me share. Next question. Question number 6. W is equal to 3z raised to power 7 minus 7 z raised to power 3 plus 21 z square. W is equal to 3z raised to power 7 minus 7z cube plus 21z square. Take the first derivative. यहाँ वेरिएबल x नहीं है भाई और ना यहाँ y है, this is W. So we will write derivative of W with respect to z
तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो देखभाल के क्वेश्चन क्या करें, ना y का जिक्र है ना x का जिक्र है, और बच्चे उसमें भी dy अपॉन डी एक्स लिख देंगे क्योंकि उनकी नजरें काम नहीं करती, वो आंखों से देखते नहीं है। सिर्फ उन्होंने आंखें बंद करके टीचर ने dy अपॉन डी एक्स लिखा था, बस हमने भी dy अपॉन डी एक्स ही लिखना है, हाँ उसमें x है या नहीं है, y है या नहीं है, वो नहीं उन्होंने देखना। तो यहाँ क्या है, w इज अ फंक्शन ऑफ z है, w इज अ फंक्शन ऑफ z है, तो dw अपॉन dz होगा ये। तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, और z रेज़ टू पावर 7 का डेरिवेटिव 7z रेज़ टू पावर 6। सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है -7z³ -7 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, और z रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3z², एक पावर कम करके लिख देंगे, प्लस 21z², 21 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, और z² का डेरिवेटिव 2z, पावर 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 पावर आ जाएगी z। सिंप्लीफाई कर ले इसको, ये हो जाएगा 21z6 माइनस 21z² प्लस 42z। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है dw अपॉन dz। सेकंड डेरिवेटिव d2w, d के ऊपर 2 आ जाएगा अपॉन dz², z के ऊपर 2 आ जाएगा, d2w अपॉन dz2 इज इक्वल टू 21 कांस्टेंट है, z6 का डेरिवेटिव 6z रेज़ टू पावर 5 माइनस 21 कांस्टेंट है, z² का डेरिवेटिव 2z प्लस 42, z का डेरिवेटिव 1, z का डेरिवेटिव 1। सिंप्लीफाई करें, 21 इंटू 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, z रेज़ टू पावर 5 माइनस 42z प्लस 42। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। दोनों के अलग अलग जवाबात लिखते हैं आपने, आंसर सेपरेटली लिखते हैं दोनों के, ये नहीं कि आप आखिरी वाले को आंसर लिख दें। उसने कहा फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने, तो दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया, उसका आंसर ये आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उसका आंसर ये आया। और अगर सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव कहता तो फिर सिर्फ ये आंसर लिखते, लेकिन प्रोसेस यही होगा कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, याद रखिए। We can't find the second derivative directly. First we have to find the first derivative, then we have to find the second derivative, और फिर उसके बाद अगर थर्ड भी कहा गया फिर थर्ड करेंगे। और अगर उसने सिर्फ थर्ड कहा था तो पहले फर्स्ट निकालेंगे, फिर सेकंड या फिर थर्ड, और आंसर में सिर्फ थर्ड डेरिवेटिव लिख देंगे। लेकिन अगर वो कहता है सब डेरिवेटिव लिखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट का भी आंसर लिखना है आंसर में, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव तीनों आंसर लिखने हैं। तो ये आपने याद रखना है कि सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले बगैर डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर उसने सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव पूछा, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, तो भी हमें फर्स्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड उसका करेंगे, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, दैट विल बी द सेकंड डेरिवेटिव। डायरेक्ट हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन आंसर में सिर्फ हम सेकंड डेरिवेटिव ही देंगे क्योंकि उसने सेकंड डेरिवेटिव पूछा था। लेकिन इन क्वेश्चन में उसने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पूछे, तो पहले फर्स्ट निकालेंगे, फिर सेकंड, और फिर दोनों के आंसर भी दोनों के लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव दिस वन, सेकंड डेरिवेटिव दिस वन। सॉरी, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4, नॉट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 था भाई, गलती से 6 लिख, 6 अब करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 हम अब करेंगे। तो ये बेटा समझ में आ गया आपके डेरिवेटिव। ये बेसिक चीजें हैं, डेरिवेटिव के बुनियादी क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये अगर समझ में आ गए तो आगे भी आपको समझ में आ जाएंगे। ओके बेटा, ओके बेटा मान लो। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक फ्रैक्शन में y इज इक्वल टू x³ अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2 प्लस x/4। इसको अगर हम इसको रीराइट करें, इस तरह लिख दें हम इसको, y ही ये 1/3 इंटू x³ 1/2 इंटू x² 1/4 इंटू x। अब ये हमारे लिए इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो गया। तो 1/3 कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, 1/4 भी कांस्टेंट है, तो इनको एक ही जगह हम लिखते हैं। नाउ द फर्स्ट डेरिवेटिव, ये y विद रिस्पेक्ट टू x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dy अपॉन dx यानी y डैश 1/3 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव 3x², इस तरह 1/2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1/4 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। तो ये 3 जो है 1 से कैंसिल हो जाएगा, x², ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस x 1/4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1/4। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, y डबल डैश, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x पावर 2 नीचे आ जाएगा और पावर 1 -1 करेंगे तो 1 पावर आ जाएगी, x का डेरिवेटिव 1 और 1/4 का डेरिवेटिव 0। ये कांस्टेंट है, 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट था, 1/2 भी कांस्टेंट था, 1/4 भी कांस्टेंट था। अब ये सिर्फ 1/4 है, x के फंक्शन के साथ नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 2x + 1। ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है, y डबल डैश का, दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड डेरिवेटिव, एंड ये y डैश का फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है। ये दोनों आंसर्स हमने सेपरेटली लिखने होंगे नीचे आंसर। फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश, सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश, या फर्स्ट डेरिवेटिव